all around India with for more than 8 lakh students, 8 lakh students and teachers and general public. He has addressed almost all the states and union territories in India. He has also formed Thackeray Charitable Trust in year 2013 to serve this purpose. At his home residence at Shirdon, Panvel, he has set up residential facility for study center for UPSC and MPSC and other competitive exams. So we are very happy to have him here. And I request our principal sir, Dr. Anish Gangal sir, to welcome him today. Over to you, Gangal sir. Thank you, Omkar, and good morning to all of you. On behalf of SSKM's College of Engineering, its staff and students, I welcome you, Mr. Thackeray, Thank you, sir. and I hope you are doing great. Yes, sir. It's a great pleasure to have you here today, sir, with us. And I won't be speaking anything because I am not authority to speak on this topic. So without wasting any time, I will hand it over to you, Mr. Thackeray. Please, sir. Hello. Hello. Shall we start? Yes, sir. Please. Yeah. So as you can see, the screen has got today's topic details. Okay. And I hope it is comfortable to all of you. Then we will go in this particular screen sharing mode, or else I can share the window in which you can see the little bigger picture. Is it okay? Yeah, sure. It is okay. So we'll continue. See, actually, your organizer approached me. This is now addressing to the student, and I'm supposed to talk on some topic which is connected to career guidance. But then it is being the first interaction with all of you. You don't know really what type of person I am, what is my own thinking domain, how exactly I think in national perspective and international perspective, and mostly on the humanity ground. So I first felt that I should make you clear my thinking process, domain, and the destination which I am expecting for my own life and targets of my philanthropic activities. So we will be talking today on some basic topic which is related to the science to technology. I'll be doing this by using scientific thinking, but very important part is this is not the specific lecture connected to your career guidance or professional guidance or career opportunity in some specific organization. This is general lecture which basically emphasis on what student or people who are involved in the basic education to the applied education think about science and technology, so that they can be good contributor to the humanity at latter stage of their life. So if you anytime feel that it's not going well, you are supposed to put the comment in chat box. No switching on mic unless until I request, and that is the only expectation from this particular session. Last 3,000 lectures which I delivered all over India, including every state and territory, union territory, it was free of cost. It is from my money. So expectation was discipline and understanding the intention of this selfless mission. So somebody gets some different feeling from this particular lecture, you are free citizen of India. Give me a second. I'm still audible? Yes, sir, you're audible. Yeah. So my Yes, yeah, yes. yeah, thank you. So basically, we will get into the lecture directly instead of beating much bush. So we are talking about science to technology. So let me show you what is there in basically technology today. Okay, let's go. Give me a second, and you all know what it is. This is iconic example of today's technology. We all
not even we Indians who are quite good in technology, which is connected to the nuclear and space, and all credit goes to our ancestors who worked hard during on pre-independence era and after independence era. But this particular thing is now under control for many other nations also who have not touched or understood technology well. Like very recently, one Arab country has also launched Mars orbiter mission and it got successful. So what is important here is, suppose this is one of the iconic example. I'm speaking in English only because though I'm from Marathi medium, studied in Jilla Parishad school, but after last 25 years of exposure into the Cosmo crowd, I'm now bit comfortable with Hindi, English, Marathi also. But then communication will be made in both three of these languages. So anytime you feel uncomfortable also, you can put it in the chat box also. I don't mind that. Okay. Now come to the very important part. आपके सामने जो दिखाया है वो अगर टेक्नोलॉजी का अद्भुत नमूना है 21वीं सदी का, तो आपके लिए एक सवाल है। इस पर्टिकुलर वेबिनार में सवाल तो पूछा जाएगा, बट हो सकता है कि मैं आपसे जवाब मांगूंगा पर आप देंगे या नहीं देंगे इसका इंतजार नहीं करूंगा। द ओनली इश्यू इज दैट वी आर ऑन द ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन में जब हम लोग क्लास के सामने होते, ग्रुप के सामने होते, तो इंटरेक्शन बिकम्स इजी एंड मोर डिसिप्लिन। यहाँ इस मामले में इनडिसिप्लिन फील होगा अगर सब लोग माइक ऑन करना चालू कर देंगे तो। So I asked you कि by chance anybody has got any idea what may be the weight of this particular system, and many people who are doing an engineering PhD but not connected to the space science or rocketry, उनको अंदाजा नहीं होता है कि एक्चुअली ये कितनी भारी चीज है जो आसमान में जाती है। तो इसलिए मैं नॉर्मली उदाहरण देता हूँ, क्योंकि हमको तो ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से तंत्रज्ञान समझना है। मतलब ज्ञानापासून विज्ञान आणि विज्ञानापासून तंत्रज्ञान। ओके, नॉलेज टू सायन्स, सायन्स टू टेक्नॉलॉजी. This is the journey which we want to learn today as far as my topic of speech is concerned. तो भाई आपके घर में मोटरसाइकिल है, आप लोग भी कहीं सिंधुदुर्ग में, कनकवली में घूमते होंगे, और आप देखते होंगे कि जिनके पास, सबके पास ये जो ऑटोमोबाइल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर है, सबके पास गाड़ी होती है, बट वो ज्ञान नहीं होता कि भाई ट्रैफिक के कुछ नियम भी होते हैं। So consider that you met with some guy who don't know any rule of traffic and you met with some mild accident. आपकी मोटरसाइकिल रास्ते पे गिर गई और गिरने के बाद आपको उसको उठाना है तो ऑब्वियसली आप अकेले व्यक्ति जिनका वजन तकरीबन 60-70 किलो है, वो ये मोटरसाइकिल रास्ते पे सीधे खड़ी इमीडिएटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप थोड़ी डरी हुई अवस्था में है, चोट भी पहुंची होगी। तो जब एक इंसान जो 70 किलो के वजन का है, जो एक तकरीबन मोटरसाइकिल 150, 200, 300 किलो का होता है, उसको उठा नहीं पा रहा है और खड़ा नहीं कर पा रहा है, ऐसे अवस्था में अगर मैं आपको बोला कि व्हाट इज द वेट ऑफ दिस स्पेस शटल सिस्टम एंड यू फेल्ट दैट इट मस्ट बी इन अ few thousand kgs और few lakhs kgs, तो इसका वजन होता है, स्पेस शटल जो दिखाया है उसका तकरीबन 75,000 किलोग्राम। जो रॉकेट्स है, एक रॉकेट का तकरीबन 6 लाख किलोग्राम, और दूसरी जो सिस्टम है जिसमें फ्यूल टैंक प्लस ऑक्सीडाइजर है, दैट्स बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 8 लाख किलोग्राम। तो 6 6 12 प्लस 8 20 प्लस 1 21 लाख किलो वजन जमीन से उड़ता है, आसमान में जाता है और सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि इतना भारी भरकम वजन इंसान अगर आसमान में छोड़ के उससे अजीबोगरीब कारनामे कर पाता है, तो ये उसके शारीरिक क्षमता का प्रतीक नहीं है। इट इज डायरेक्ट इंडिकेटिव और रिफ्लेक्शन ऑफ हिज मेंटल एबिलिटी विच ही हैज डेवलप्ड इन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। हजारों लाखों साल के दिमागी मस्तिष्क पे जोर डालने की वजह से इंसान ने ये तरक्की की है। तो अगर ये चीज पे आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज का मेरा लेक्चर विल नॉट बी ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी पाने के लिए इंसान ने जो दिमाग का विकास किया और उसके पीछे जो सिंसियर डेडिकेटेड एफर्ट्स डाले, इसके लिए होगा। बट ये इसके लिए भी नहीं, ये लोग जब इंसान मेहनत कर रहे थे तो कुछ नमूने उनको तकलीफ दे रहे थे जात धर्म भाषा के नाम पे, इनका भी हम थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे। एंड मेजर एम्फेसिस ऑफ दिस फर्स्ट लेक्चर विल बी about that struggle of the social reformer scientist against the community bias by religion and religious fundamentalism। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा
कि आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बीए हो, बीकॉम हो, 10वीं फेल हो, आपकी जिंदगी की जो राह है वो चुनने के लिए एक सोच जरूरी है। तो अगर हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि भाई ये स्पेस शटल सिस्टम है जो आसमान में जाता है, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करता है, फिर हमारे घर पे टीवी चलता है, वेदर फोरकास्टिंग होता है और कितनी सारी चीजें होती है। आजकल सर्जिकल स्ट्राइक भी इंडिया सटीकता से कर पा रहा है। तो इसमें कारण है कि इंडिया का स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो एक्सपर्टीज है और वहां से उनको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, पिछले 2 साल में हम खुद देख रहे हैं। अभी यहाँ पे बारिश होगी कि धूप होगी, ये ऑलमोस्ट 1-2 घंटे के प्रेसिजन से हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दे पाता है, आईएमडी। तो इसका कारण भी है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो भाई ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट कोई एक इंजीनियर की मेहनत से नहीं बनते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। बट काम करने वाले इंजीनियर को साइंटिस्ट के तौर पे डेसिग्नेट किया जाता है, अगर वो इसरो में है या बीआरसी में है या डीआरडीओ में। तो एक आम बच्चा खास बन जाता है अगर वो मेहनत करे, अपने आप को जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें पास होने के लायक बनाए। इसमें किसी भी भूत बाधा, ऊपर का नीचे का, सुपर नेचुरल, ये सब चीज की जरूरत नहीं है। और ये समझ अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद में नहीं, भाई कॉप रखी है, तो आपको शायद 21वीं सदी में जीने का अधिकार नहीं है, ऐसे मेरे जैसा व्यक्ति तो आराम से बोल देगा। बट देन बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द लेक्चर, लेट्स गो थ्रू दिस स्लाइड। चिल्ड्रन मतलब आप, हम सभी जब तक विद्यार्थी है तब तक हम बच्चे ही है, हमसे बड़े होते ही है लोग। कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है। द चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। व्हाट टू थिंक बताने का काम कहीं मजहबी लोग जो होते हैं वो करते हैं कि आपको ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही करना है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो भाई आपको 5 कदम पीछे जाना ही है। बट हाउ टू थिंक में ये सब नहीं है। हाउ टू थिंक का बेसिक गाइडलाइन जो है वो कनेक्टेड है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से। और उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि कुछ लोग 10वीं फेल होने के बाद भी लाखों करोड़ों का कारोबार करते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएट होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, और कुछ लोग ग्रेजुएट भी होते हैं, नौकरी भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं और कमाया हुआ सारा पैसा कहीं ना कहीं अच्छे काम में डालते हैं। ये बहुत अलग अलग टाइप की सोच है और ये सोच में जरूरी हिस्सा होता है संस्कार का। और हमारे जिंदगी में हमको सबसे ज्यादा संस्कार माँ बाप से और अपने आजू बाजू के फैमिली मेंबर से और एजुकेशन की प्रक्रिया से मिलता है। तो एजुकेशन की प्रक्रिया को अगर हम डिफाइन करने जाए तो somebody में से इट्स अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अ नॉलेज। But if you ask me what is the education, the good and nice and correct definition of education is that it is not mere process of gathering a knowledge. It's a training of mind to think. How to think. या आप देख रहे हैं ना आपके स्लाइड में जो चित्र है उसमें दिख रहा है हाउ टू थिंक। ये हाउ टू थिंक एजुकेशन से आना चाहिए, ना कि किसी मजहबी किताब से। इतनी छोटी चीज अगर एक 10वीं 5वीं करने वाले बच्चे के दिमाग में आप फिट कर दो कि बच्चे भाई आपको कैसे थिंकिंग रखनी है, तो आगे जाके बच्चे की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं, और आएगा भी तो उसके लिए वो माँ बाप को, सिस्टम को, गवर्नमेंट को, टीचर को ब्लेम नहीं करेगा। वो ये समझ पाएगा कि 50% कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज फ्रॉम अस व्हेन एनीथिंग हैपेंस गुड और बैड टू अस। तो ये चीज अगर आपके समझ में आई है, एजुकेशन की प्रक्रिया को हमने डिफाइन कर दिया है, तो मैं बात करूंगा इन टॉपिक के ऊपर कि साइंटिफिक थिंकिंग एक जरिया है जो आपको सही राह चुनने में मदद करता है। ये चीज जो यहाँ है, आप जब वीडियो फिर से देखेंगे तब आप गौर से देखिए, अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा। विल गो फर्दर। मैं साइंटिफिक थिंकिंग का पिछले 25 साल से नहीं बोला तो एडवोकेट कर रहा हूँ, प्रोपागंडा कर रहा हूँ, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 51 AH says that it is a fundamental duty of every Indian citizen to develop, promote, inculcate scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. इससे मुझे क्या लगता है सबका फायदा होगा, वो पहले पॉइंट में लिखा है, it helps to make more rational and informed choices in life. आप आपके जिंदगी में कभी भी कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हो तो मेरे इस लेक्चर के ऊपर आधे मिनट का भी विचार करेंगे तो मैं बोलता हूं कि आपकी जो डिसीजंस होंगे वो ज्यादा रैशनल, साइंटिफिक और इन्फॉर्म्ड होंगे। अनजाने में लिया हुआ डिसीजन कभी फायदा देता है
बट कभी कभी इतना नुकसान करता है कि उससे उभरना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। सो लेट्स गो। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए मैं ये लेक्चर देता रहता हूँ और लोगों को कन्विंस करता हूँ जब मुझे अप्रोच करते हैं तो, कि भाई पहले ये लेक्चर होगा फिर आपकी जरूरत का लेक्चर होगा। तो पहला लेक्चर ये लेने के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में होते हुए भी कुछ जगह पे मिसिंग है, उसका कारण है कुछ जगह का सोशल एनवायरनमेंट और एजुकेशन रिसीव्ड बाय द किड्स स्टूडेंट्स एट द अर्ली एज ऑफ लाइफ। ये चीज जरूरी इसलिए हो जाती है कि जब लाइन ऑफ थिंकिंग बिगड़ गई तो जिंदगी की लाइन या पाथ बिगड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। It is considered a moral crime to question what is being preached or written in a religious book. हिंदुस्तान में ये थोड़ा कम देखने मिलता है, बट जो इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते हैं वो मेरे जैसे लोग आपको ये जरूर बोलेंगे कि आज दुनिया में जितने प्रॉब्लम है ये लास्ट जो रिलीजियस बुक वाला फंडा है ना उधर से। अभी ये हमारे यहाँ दिखता है, लोग उसको ऊपर बोलते हैं, टीवी पे आता है, बट दुनिया में जो इस चीज के चलते गलत चीजें हो रही है उसका 10% प्रपोर्शन भी अपने यहाँ नहीं। जबकि हमारे यहाँ कितने टाइप के कितने डाइवर्सिटी का कल्चर है। तो ये हमारी अच्छाई है जिसको हमको प्रमोट करना है, एडवर्टाइजमेंट के तौर पे नहीं, हमारे जिंदगी से दुनिया को लेसन देते हुए। तो इसको हम हैंडल करेंगे आज। सो लेट्स गेट इनटू द क्रक्स ऑफ द टुडेस लेक्चर। वी स्टार्टेड विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच वी आर सीइंग। और मैंने बोला कि जो सैटेलाइट लॉन्च होता है उससे आपको टीवी घर पे चलते हुए दिखता है जिसको हम सैटेलाइट टीवी बोलते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पैगंबर साहब हो, जीसस क्राइस्ट हो, या भाई संत ज्ञानेश्वर जी हो, या गुरु गोविंद सिंह हो, या फिर गौतम बुद्ध जी हो, या फिर जैन तीर्थंकर महावीर जैन हो, क्या इनके घर पे टीवी था? इनके घर पे इतना ज्ञान का भंडार था जो हमारे मोबाइल में है? और ये सब नहीं था क्योंकि ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से तंत्र ज्ञान आना बाकी था, जबकि समाज में अच्छाई की और बुराई की कोई कमी नहीं। सो इफ वी गो ऑन दैट पर्टिकुलर डोमेन, समवेयर समहाउ वी हैव टू अप्रिशिएट समबडीज एफर्ट्स। किसी के मेहनत को हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिसने दुनिया को नई दिशा देने की कोशिश की। उसको जात धर्म भाषा देश के बाउंड्रीज में बांटना जरूरी नहीं है। और अभी जिनका माइक ऑफ रखिए, जिनका चित्र हमने दिखाया है आपको वो है, और बहुत सारे लोगों को शायद ये भी नहीं पता होता कि गूगल मीट कैसे ऑपरेट करना है। थोड़ा बीच बीच में किसका माइक ऑन? योगेश अमरोस्कर, माइक ऑफ करिए। Yogesh Amroskar, please turn off your mic. उनको उतना भी नहीं समझ में आता है कि हम घर पे नहीं बैठे। एक कॉमन सेंस जो लोगों में अभी भी किसी का remove him from class and don't allow him again. ओके, सो हम बात कर रहे थे कि यहाँ जो आपके चित्र में है इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी, बट व्हाट ही डिड वाज सो इम्पोर्टेंट कि शायद साइंस से ज्ञान से विज्ञान आया, विज्ञान से तंत्रज्ञान भी आता, बट फिर भी कोई महान व्यक्ति अपने ही देश में अपने ही राज्य में बोल के गया की माणसाने विज्ञानाची सृष्टी घेतली पण दृष्टी घेतली नाही। ती विज्ञानाची दृष्टी समाजामध्ये आणण्याचं काम शेकडो हजारो वर्षापासून होतंय, but then it was practically put on a paper by scientific evidences by the observation by this gentleman called Mr. Galileo. उनका पीरियड आपको दिखाया गया है। जब आप 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हो तो 15 फरवरी भूल जाते हो जो इस महान व्यक्ति का जन्मदिन। इन्होंने वो जो आपके चित्र में दिखाई हुई छोटी सी दूरबीन है, डायमीटर है 2 सेंटीमीटर मतलब 20 मिलीमीटर, दिमाग में देख लीजिए कितना बड़ा। इससे बड़ा तो हमारा बाइनोकुलर होता है 5000 का। तो ये से छोटी चीज से उन्होंने आसमान में कुछ देखा। अभी गैलीलियो पे बात करनी है तो भी शायद आधा घंटा लगेगा, बट उस पर बात नहीं करेंगे। इस महाशय ने 400 साल पहले छोटी दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए आसमान की तरफ देखा। आप मुझे अपने कॉलेज में बुलाएंगे तो कोई खर्चा तो होने वाला नहीं है, खुद से आऊंगा। साइड में जो दिखाया हुआ है वो बड़ा वाला टेलीस्कोप लेके आऊंगा और आपको गैलीलियो ने क्या देखा वो दिखाऊंगा। तो पहले देखते हैं चित्र के फॉर्म में क्या देखा। व्हाट इज दिस? मून। नीचे क्या है, कोई जल्दी से बताएगा? इसके नीचे आप बोलेंगे कोई ट्विंकलिंग स्टार लाइक ऑब्जेक्ट।
तो मैं पूछूंगा फिर ये क्या है, तो आप फटाक से बोलेंगे ये चंद्र की फेजेस मतलब चंद्राचा कला है। ओके, तो दोनों जवाब गलत हो गए, क्योंकि ये चंद्रमा है, उसके ऊपर के गड्ढे दिख रहे हैं और वो गैलीलियो ने उसके छोटे से टेलीस्कोप से देखे। सही जवाब। नीचे वाला जो ट्विंकलिंग लाइक ऑब्जेक्ट है वो स्टार नहीं है, वो प्लेनेट वीनस है, और ये वीनस की फेजेस है। अभी अपने अंतरात्मा को टटोल के गिरेबान में झांक के देखिए। इंजीनियरिंग करने आए, इंजीनियरिंग कर दिए, इंजीनियरिंग को पढ़ा रहे हैं, एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन फेजेस ऑफ वीनस? इस सवाल का जवाब मैं चैट बॉक्स में लेना चाहता, बट वक्त की कमी देखते हुए फिर मिलेंगे फुर्सत में तो फिर से यही प्रेजेंटेशन एक बार आपके सामने करूंगा। फिर देखेंगे कि आपके जो सवाल है उनका और आपके जवाबों का भी हम लोग वहां पे ब्यौरा लेंगे। नाउ लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। गैलीलियो ऑब्जर्व्ड craters on moon. Second part he observed was the phases of Venus. Third thing he observed was the satellites of Jupiter. आयो, यूरोपा, गनीमेड और कैलिस्टो नाम के ये नेचुरल सैटेलाइट्स है जुपिटर के, गुरु के, बृहस्पति के। और उसके बाद उन्होंने सैटर्न के रिंग देखे, फिर उसके बाद उन्होंने सूरज के स्पॉट देखे, सनस्पॉट, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इतनी सारी चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें की, और मरते दम तक विज्ञान का सहारा लेते हुए उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि भाई हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जो कोपरनिकस ने बताया था वही सही। क्या मिला उनको रिटर्न गिफ्ट? वो रिटर्न गिफ्ट में उनको कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई अप्रिसिएशन में नहीं गया। हाउस अरेस्ट किया गया 16 साल के लिए, अज्ञातवासात म्हणजे एकांतवासात होते ते आयुष्याची शेवटची 16 वर्ष, शेवटची लास्ट 5 इयर्स वो थोड़ा उनको दृष्टि कमजोर हो गई थी। और फिर जब मरे तो मरने के बाद उनके नाम का एक स्टैचू या टॉम भी नहीं बनाया। 400 साल बाद किसी को याद आया 1990s में कि भाई उन्होंने जो कहा वो सही था। तो कभी किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने माफी मांग ली कि भाई गॅलिलिओ सही था, हमने माफ कर हमने गलत तकलीफ दी गॅलिलिओ, याला आपल्यात मराठीत म्हणतात वराती मागून घोडे. ओके, तो हा जो प्रकार आहे हा नेहमीच हर समय साइंटिस्ट सोशल रिफॉर्मर के साथ होते आया है, और हम लोग कभी कभी ऐसी भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं जो बेवजह हमारी इमोशनल अच्छाई का फायदा ले रहे। तो अगर हम इमोशनल न होते हुए प्रैक्टिकल हो कुछ मामलों में जहां देश का और मानवता का हित छुपा है, तो शायद हम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो कि नहीं जरूरी नहीं है, बट एक अच्छे इंसान के नाते हमारा फर्ज निभाने में सक्सेसफुल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मुझे नहीं मालूम। तो स्टोरी थी कि भाई व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर साइंटिस्ट टू द वर्ल्ड व्हाट वी आर एंजॉयिंग टुडे। आज हम जो मस्त जिंदगी जी रहे हैं, नेटफ्लिक्स वाली और अमेजोन प्राइम वाली और मॉल वाली और बहुत सारी चीजें होम डिलीवरी होती है वो सब, तो ये सारी चीजें जो शहरों में उपलब्ध है उसके पीछे जो ज्ञान विज्ञान से तंत्र ज्ञान का जर्नी है वो इतना सुनहरा या इतना रंगीन नहीं था, या आपको समझ में आए। इसलिए हम चलेंगे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में जो चलेगा अगले 15 मिनट। बट उसके पहले कोई एक व्यक्ति जो रिप्रेजेंटेटिव है बता दे कि शैल वी कंटिन्यू इन दिस मैनर और यू वांट समथिंग एल्स। बोलिए माने मैडम। So let's continue the same way, sir. ओके ठीक है, तो We will ओके, okay. तो हम इस तरीके से चल रहे हैं। आपको कुछ और जरूरतें होंगी तो देन वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि जो इतनी सारी गलतफहमियां इंसानी सभ्यता में आज के डेट पे है, विज्ञान की जिंदगी जीते हुए, और सही कहा किसी ने कि हमने विज्ञान की सृष्टि ली, उनके टेक्नोलॉजी के आविष्कार लिए, बट उसकी दृष्टि यानी सोच नहीं ली। और हिंदुस्तान जैसे कंट्री में संविधान में इसका अरेंजमेंट होते हुए भी हमने उसको सही मायने में समझा नहीं, जबकि संविधान नाम से कितने लोग कितने भाषण देते हैं और कितने लोग उस चीज का गलत फायदा भी उठाते हैं, पर उनके दिमाग में ये चीज नहीं आती कि अंबेडकर जी, नेहरू जी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन जैसे महान लोग समाज को कौन सी दिशा में लेना चाह रहे हैं, और उसका नतीजा आप देख भी रहे हैं। हमारे जैसा देश आज स्पेस और एटॉमिक एनर्जी की टेक्नोलॉजी में बहुत अग्रेसर है। इसका कारण है हमारे पुरखों की सोच जो इनबिल्ट हमारे रूल्स रेगुलेशंस में आई।
और आज कोई अगर ये बोले कि भाई उन्होंने गलत किया तो उन्होंने अच्छा क्या किया वो भी उनको हमको बताना चाहिए। एनीवेज, तो हम बात करेंगे कि गलतफहमियां क्यों है, और इसके लिए हमको 10 साल, 100 साल, 1000 साल पीछे जाके नहीं चलेगा, हमको ओरिजिन तक जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अगर मैं आपको क्या छोटे बच्चे को भी बता दूं कि ये जो सामने आपको ऊर्जा का गोला जैसा दिख रहा है, इस स्रोत से पूरे ब्रह्मांड कायनात यानी विश्व का निर्माण हुआ, तो वो बोलेगा ठीक है भाई आप साइंटिस्ट थे पिछले 24 साल से, आप सुनते भी नहीं है, तो आप सुना रहे हो तो हम सुनेंगे, हाँ भी बोलेंगे। बट हाँ बोलने के बाद अगर मैं ये बोलूं कि अगर इतने से छोटे से ऊर्जा के गोले से पूरा विश्व बना, तो सोचिए जहां आपका कॉलेज है वहां के अगल बगल में कोई सह्याद्री की रेंज होगी, और उस सह्याद्री के रेंज के ऊपर आपको फुटबॉल का ग्राउंड या ऑडिटोरियम बनाना है या स्काई ऑब्जर्वेशन साइट बनानी है, तो आपने जेसीबी लाई और पूरा पहाड़ खोद दी। अभी मिट्टी कहाँ फेंकेंगे? तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कचरा फेंकना अलाउड नहीं, तो आपने क्या किया? आपसे इतनी मिट्टी तो हटेगी नहीं, कहीं छुपा भी नहीं सकते, तो आपने डोरेमोन को बुला लिया और आपने पूरा मिट्टी का पहाड़ दबा दबा के एक टेनिस बॉल इतना बना दिया, और बाद में बाजू में बहने वाले नदी में बहा दिया ताकि वो समुद्र तक पहुंचे। नाउ जस्ट टेल मी, ये जो फिक्टिटियस स्टोरी है डोरेमोन की, ये यहाँ तक ठीक, बट क्या प्रैक्टिकली पूरा पहाड़ दबा के टेनिस बॉल इतना बन सकता है? तो ऑल ऑफ यू मस्ट बी सेइंग बाय दिस टाइम नो। तो अगर पूरा पहाड़ टेनिस बॉल इतना नहीं बन सकता, तो सिंधुदुर्ग नहीं बन सकता, तो महाराष्ट्र नहीं बन सकता, तो इंडिया नहीं बन सकता, तो अर्थ नहीं बन सकता, तो सन और सोलर सिस्टम नहीं बन सकती, तो जो अरबों खरबों सोलर सिस्टम्स है वो भी नहीं बन सकती। तो भाई मैं यही बोल रहा हूँ कि दुनिया में जो कुछ मौजूद करता है वो सब कुछ इतने से ऊर्जा के स्रोत से आता है। then it's very difficult to believe if you have good strong scientific fundamentals। बट ये स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फंडामेंटल और एजुकेशन की खासियत ये है कि वाचाल तर वाचा, आज इंटरनेट का सोर्स है, आपके पास पढ़ने के लिए माध्यम है, आपको पढ़ना आता है, अगले 15 दिन भी आप बिग बैंग पे पढ़ोगे तो यू विल गेट कन्विंस्ड कि बिग बैंग इज द करेक्ट ओनली थिंग, हमको बहुत सारी चीजें पता नहीं। सो टेम्परली assume that big bang is correct। then now the next question comes is how old is our universe। हम जब भी सिंधुदुर्ग टाइप करेंगे, कणकवली टाइप करेंगे, आपके कॉलेज का नाम टाइप करेंगे इंटरनेट पे, तो इमीडिएटली हिस्ट्री जैसा कुछ ना कुछ विकिपीडिया पे कहीं ना कहीं आता है। यूनिवर्स डालोगे तो आपको मिलेगा जवाब ये है डायग्राम जो काफी सर्कुलेट होता है, और उसमें लास्ट में यूनिवर्स के ब्रह्मांड के उम्र का पता है, दैट इज 13.7 to 13.8 बिलियन ईयर्स। इतना पुराना जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें अगर सिर्फ हम टाइम मशीन से पीछे जाएंगे तो 95% गलत फहमियां इसी 1 घंटे में दूर हो जाएंगी। सो लेट्स गेट बैक इनटू द टाइम, ओ सॉरी, एंड अंडरस्टैंड हाउ एंड what has happened into the journey of universe from the 13.8 billion years। 13.8 अरब साल से अब तक यहाँ पहुंचने में इंसानी सभ्यता ने क्या क्या देखा या क्या क्या नहीं देखा और क्या क्या डिस्कवर किया, ना देखते हुए अगर आप किसी चीज को थेरोटिकली, प्रैक्टिकली, साइंटिफिक एविडेंस से प्रूव करते हो तो उसको डिस्कवरी ही बोला जाता है। तो हम अभी जाएंगे थोड़ा पीछे, चलो मान लो आज से हम 70-75 साल पीछे चले गए, तो हमको क्या दिखेगा? देश स्वतंत्र हो रहा है, कुछ अच्छे लोग सेल्फलेस भावना से काम कर रहे हैं, कुछ खराब लोग अभी से सिंडिकेट बना के देश को लूटने का प्रोग्राम बना रहे हैं। सब टाइम पे सब टाइप के लोग थे, बट हमारे देश में शुरुआती दौर में अच्छे लोग थे क्योंकि सब चाहते थे कि देश स्वतंत्र हो जाए। तो स्वतंत्र होने के बाद खुद का स्वार्थ कम था और देश के प्रति निस्वार्थ भावना ज्यादा थी। एनीवेज, तो भाई 70-75 साल पहले देश स्वतंत्र हुआ। थोड़ा और पीछे जाएंगे 90 93 ईयर्स, तो देखेंगे देश स्वतंत्र नहीं हुआ है, बट देश को साइंस के मामले में किसी ने इतने चोटी पे पहुंचा दिया कि भाई पहला काला व्यक्ति, पहला एशियन व्यक्ति, पहला नॉन इंडिपेंडेंट कंट्री का व्यक्ति जिसको साइंस के लिए नोबेल प्राइज मिला, डॉक्टर सीवी रमन वी आर टॉकिंग अबाउट। 28 फरवरी को हम लोग जो राष्ट्रीय विज्ञान दिन सेलिब्रेट करते हैं वो वही है। फंडामेंटल यही है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी मीडियम से जाता है तो जाते वक्त उसके वेव में जो चेंज आता है वो उस पदार्थ के एक्चुअल प्रॉपर्टीज का रिफ्लेक्शन होता है। सो इट रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सिग्नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। इसी माध्यम से पूरे दुनिया में आज सीवी रमन जी का जो इफेक्ट है वो करोड़ों 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 रुपए की इंडस्ट्री, एक डिस्कवरी जिसने दुनिया हिला दी।
तो ऑब्वियसली नोबेल प्राइज तो मिलना ही। इतना फीबल है कि 10 लाख में से एक जो है, मतलब 1/10 lakhs इज द इंटेंसिटी इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। फिर भी वो उन्होंने प्रूव किया कम से कम साधनों में। ये दिखाता है कि इंसान में अगर मेहनत करने की इच्छा हो, लगन हो, अपने काम के प्रति डेडिकेशन हो, तो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। तो आपको एक नौकरी नहीं मिलेगी क्या, बट आप नौकरी के प्रति चाहिए उतने सिंसियर नहीं हो, लायक नहीं हो, इसलिए शायद कभी कभी आपको इस ढूंढने में तकलीफ हो जाती है। एनीवेज, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई 93 ईयर्स पीछे चले गए, अभी चलते हैं तकरीबन 150 पौने 200 साल। अभी हम जिक्र कर रहे थे गैलीलियो का, अभी मैं जिक्र करूंगा अपने देश के गैलीलियो का, जिन्होंने दुनिया को सोशल फ्रंट पे कुछ ऐसी चीज दे दी कि जिसके चलते आज हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं आज से 175 180 साल पीछे जाऊंगा, तो क्या मुझे हिंदुस्तान में लड़कियों के स्कूल दिखते? नहीं। तो भाई हिंदुस्तान में किसी ने उस जमाने में लड़कियों का स्कूल खोला, शुरू किया, उनको कुछ तो फायदा ही हो रहा होगा ना। आजकल एजुकेशन इंडस्ट्री में कितने करोड़ों करोड़ों कमाते हैं लोग, तो उन्होंने उनको कुछ तो फायदा हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने उस एम्पायर को आगे बढ़ाया। फिर आगे जाके उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले होंगे, और आज तो उनको देश में एकदम बहुत ही चोटी के व्यक्ति के नाम पे माना जाता होगा। बट आप सबको पता है ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ। दुनिया में जो मेहनत करता है उसको गारंटी नहीं है मरने के बाद भी अप्रिसिएशन मिलेगा। तो कुछ अच्छे लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो अप्रिसिएशन भी गलत तरीके से होता है कभी कभी, क्योंकि झंडे लेके ही दौड़ने वाले की कमी नहीं है दुनिया में। तो ये जो लोग है, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं जाऊं हिंदुस्तान में, मैं जब लेक्चर दे रहा था पूरे देश के कोने कोने में, तो मैं लोगों को ये सवाल जरूर पूछता था कि हिंदुस्तान का पहला लड़कियों का स्कूल किसने शुरू किया। तो लोग ऐसे उटपटांग नाम लेते थे कि कभी कभी सचमुच शर्म आती थी कि अपना इतिहास जिसको पता नहीं है वो इतिहास बनाएगा क्या, और इतिहास नहीं बना पाता है, इतना बात नहीं है तो नौकरी भी नहीं पा पाता है, और फिर गाली देंगे गवर्नमेंट को, सर को, मैडम को, और माँ बाप को। तो ये आपको समझ सचमुच मालूम होना चाहिए कि 150 पौने 200 साल पहले जब फुले फैमिली ने स्कूल्स चालू किए तो इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना सेल्फलेस मिशन चालू रखा, क्योंकि उनके दूरदृष्टि में दिख रहा था कि समाज को इसकी जरूरत। आज कुछ गधे लोगों के देश में ये चीज कोई इस 21वीं सदी में कर रहा है, तो भी कुछ नमूने उनको गोली मारते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि सब मौलाना यूसुफ, मतलब एक अंधी रिलीजियस सोच इंसान को कितना पीछे रखने में सक्षम है, इसका उत्तम उदाहरण है जो हमारे देश में बदलाव आया 200 साल पहले, वो आज भी कुछ देशों में इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे रिलीजियस फेनेटिज्म। तो आपको यहाँ पे कुछ सीखना चाहिए, म्हणजे दूसरों से गलती से जो सीखता है वही सही इंसान। तो हमको इस मामले में कितना धर्मांध होना है, यह आपको कभी ना कभी सोचना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे ज्योतिबा फुले जी की, मां सावित्रीबाई फुले जी की, उनके जयंती पुण्यतिथि सेलिब्रेशन में मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है उनकी मेहनत, लगन और दूरदृष्टिता को आपको देखते हुए, अगर आप महिला है तो जागतिक महिला दिन सेलिब्रेट करो न करो, बट आप अपने लिए, फैमिली के लिए और महिलाओं के लिए कुछ करने का जज्बा जरूर दिमाग में रखिए, जिससे सेफ्टी सिक्योरिटी पूरे दुनिया की बढ़े। क्योंकि 50% आबादी दुनिया की महिला है, ये कभी भी कोई भी समझदार व्यक्ति भूल नहीं सकता। और यही हमारे कुछ वेल विशर्स पूर्वजों ने सोचा, तो आज देश तरक्की कर रहा है, महिलाएं भी कंट्रीब्यूट कर रही 50%। तो ये जो कंट्रीब्यूशन उनका है, उनके लिए अप्रिसिएशन होना चाहिए, बट ये अप्रिसिएशन उनको हमेशा एनकरेजमेंट की तरह लेना चाहिए। लेट्स गो फर्दर। नाउ सपोज हम बात कर रहे थे टाइम लाइन में एक 150 पौने 200 साल की, अभी मैं 350 साल पीछे जाता हूँ, और आपके और मैं जहां अभी बैठा हूँ उसके सेंटर प्लेस पे एक जगह है रायगढ़ फोर्ट। 350 साल पीछे जाऊंगा, रायगढ़ फोर्ट पे जाऊंगा, तो आपको ऐसा चित्र तो नहीं दिखेगा कि शिवाजी महाराज सबके हाथ में एक एक भगवा झंडा पकड़ा रहे हैं और बोल रहे मोटरसाइकिल को लगाओ और घूमो, पूरा देश घूमो, नाम खराब करो मेरा भी और समाज का भी और भारतीयों का। ऐसा तो जरूर नहीं बोलेंगे कि शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, पूरे दुनिया के आदर्श इंसान थे। इंसान इसलिए पहले बोला क्योंकि एक आदर्श इंसान होना जरूरी है, और जब राजा आदर्श इंसान होता है तो चार चांद लग जाते। तो शिवाजी महाराज अच्छे क्यों थे ये महाराष्ट्रियन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है।
उनसे क्या सीखना है ये भी बताने की जरूरत नहीं। सिर्फ उनका फोटो लेके जुलूस निकालने में कोई मतलब नहीं है। या अपने दिलो दिमाग में आप डाल दो। गवर्नमेंट में जो पैसा आता है टैक्स का, उससे स्मारक बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है, इंटरनेट सेंटर बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, वो उनका अपना डिसीजन नहीं होता। समाज के लिए जिस वक्त जो जरूरी है वो बनना चाहिए। स्मारक स्टैच्यूज का क्या होता है वो आपके गांव में भी दिखता है, मेरे गांव में भी है, मुंबई में भी है और केनिया में भी। तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट आवर एफर्ट्स एनर्जी फॉर समथिंग गुड। शिवाजी महाराज 350 साल पहले थे, तो भाई 600 साल पहले गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक थे, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे पंजाब प्रांत में। तो भाई 800 साल पहले ज्ञान बांटने का काम संत ज्ञानेश्वर कर रहे थे। प्राकृत मतलब जो भाषा प्रचलित है, उस भाषा में ज्ञान को लाने का काम अच्छा व्यक्ति कोई कर रहा था, तो उनके नाम पे आजकल चमत्कार बेचने वाले नमूने मार्केट में है। अभी ये हो गई 800 साल पहले की बात। मैं और एक तकरीबन 800 साल पीछे चला जाता हूँ। आज से 1400 साल पीछे जाऊं, मक्का मदीना के आसपास में टहल रहा हूँ, तो मेरी मुलाकात एक महान व्यक्ति से होगी जिनका नाम था मोहम्मद पैगंबर। पैगंबर साहब ने जो किया, जो एक खास आदमी हमेशा आम आदमी के लिए करेगा, भले वो उन आम आदमियों का हिस्सा है, पर सोच खास रखता है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने मिडल ईस्ट में शांति और अमन कायम की, जो बेस बना इस्लाम का, और इसलिए इस्लाम को शांति और अमन का धर्म बोला जाता है। क्या था वहां पे? आज से 1400 साल पहले रेगिस्तान में लोग जब खाने पीने की चीजों के लिए मारकाट कर रहे थे, तो उनको शांति अमन का नारा सही मायने में पैगंबर साहब ने और इस्लाम द्वारा फैला। अभी आज से 200 साल पहले लिखी चीजों में बहुत सारी गलतियां हो सकती है, 600 साल वाली में हो सकती है, 800 साल वाले में हो सकती है, तो 1400 साल वाली चीजों में भी हो सकती है। ये अप्रिशिएट करना और उसमें इम्प्रोवाइजेशन लाना इंसानियत है, ना कि जो वो 4 पन्नों में लिखा है वही सही। 4 पन्नों में, 40 पन्नों में, 400 पन्नों में लिखी हुई चीज होती, तो पीएचडी का थीसिस लिखने के पहले हम कम से कम 16 से 20 साल का एजुकेशन लेते नहीं थे। और 16 से 20 साल में 5 के हिसाब से भी जाएंगे, तो कम से कम हम लोग 100, 200, 500 किताबें पढ़ते नहीं। तो एक किताब कैनॉट बी कंपेयर टू द 1000 किताब एंड द ओशन ऑफ नॉलेज विच इज इंटरनेट। इतनी छोटी चीज आपके जड़ बुद्धि में नहीं आ रही है, तो आपका कुछ ज्यादा नहीं हो सकता। अभी आगे चलेंगे। चलो हम चले पीछे और थोड़े 300 साल, तो नालंदा यूनिवर्सिटी मिलती। और पीछे चले सपोज 600 साल, तो जीरो पहुंच जाते। और जीरो के पीछे जा सकते हैं क्या पूछने के बाद भी? बड़े बड़े इंजीनियर बोलते नहीं। तो जा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बीसी। ओके, तो अगर जीरो तक पहुंच गए तो हमको मिलेंगे और एक मसीहा जिन्होंने धर्म की शुरुआत की। वो कोई भगवान नहीं थे, उन्होंने एक अच्छी सोच की कहीं ना कहीं बीज रोपण किया। व्हाट वाज हिज नेम? जीसस क्राइस्ट। क्रिश्चियनिटी इनिशिएटेड एंड लैंडेड अप इनटू समथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल इमीडिएटली आफ्टर 4-5 years, 4-5 centuries। 4-5 सालों के बाद इसी चीज ने यूरोप में अंधार युग लाया, जिसके दरवाजे खोले गैलीलियो ने 15वीं 16वीं सदी में। तो ये हम बात कर रहे थे कुछ धर्मों की जो जीरो के बाद में थे, एडी में थे। अभी हम चलेंगे पीछे। जीरो के पीछे 260 साल चलूंगा तो मुझे उड़ीसा में सम्राट अशोक मिलेंगे। वही मैं उसके पीछे 50-100 साल चलूंगा तो चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, पौरस, अलेक्जेंडर द ग्रेट मिलेंगे। उसी के पीछे थोड़ा चलूंगा तो आज से 2400 साल कुल पीछे जाऊंगा तो कहीं यूरोप एरिया में पाइथागोरस दिखेंगे। उसमें और 200 साल पीछे जाऊंगा तो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे कहीं मुझे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध मिलेंगे। वही आसपास कहीं मुझे उसी पीरियड के समकालीन थे, थोड़ा पीछे या आसपास, जैन तीर्थंकर्स। और यहाँ पे सच मानो तो सारे लिखे हुए धर्मों की स्टोरी एंड हो गई। तो आप बोलेंगे हम किस चीज का हिस्सा? हम एक सभ्यता का हिस्सा है। इसको बोला जाता है भारतीय संस्कृति। ये किसी धर्म की मोहताज नहीं है, किसी जात की मोहताज नहीं है। जो भी इसमें इस तरीके की गलत चीजें आई, वो गलत लोगों के गलत उद्देश्य से आई। आज से अगर हम 2600 साल पीछे जाने के बाद सारे धर्म चपेटे में लिए थे, तो 3600 साल पीछे जाऊंगा तो भी मुझे एक सभ्यता अलाइव, वाइब्रेंट और प्रॉस्परिंग दिखेगी। एंड दैट वाज समथिंग रिटन इन मेनी बुक्स इंक्लूडिंग वेदास। वेदास का एक अंग है वेदांग ज्योतिष। ये कोई ज्योतिष पोथी पुराण अंगूठी पहनो रस्सी बांधो टाइप का नहीं है। ये ग्रह तारों के कैलकुलेशन का एक किताब है। ज्योतिष मतलब ज्योतियों का ज्ञान, और वेदांग मतलब वेदों का अंग।
क्या है इसमें? इसमें वही हिसाब है कि भाई मृग नक्षत्र क्या है, बारिश कब होती है, समय का कीपिंग क्या है, रिलीजियस सेरेमनी हार्वेस्टिंग के बाद क्यों होने चाहिए, सूरज जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके मायने क्या है। ये सारे हिसाब किताब जिसने सही मायने में अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज्ड बनाते हुए प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके गए, ये फंडामेंटल ओरिजिनेट हुआ कई सभ्यताओं से। एक सभ्यताएं अपने देश में भी थी, और ये जब 3600-3800 साल पहले हो रहा था, तो जिन्होंने इसको पढ़ा वो मॉडर्न फिलोसोफर में से एक थे, मार्क ट्वेन, और उन्होंने बोला इंडिया वॉज द क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी। अभी इंडिया वॉज द क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि आज जो दिखता है वो कुछ ज्यादा सराहनीय नहीं है। आज मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट ऑफ द इंडिविजुअल। हर व्यक्ति के दिमाग में जो स्वार्थ भरा हुआ है, ये स्वार्थ इंसानियत को तकलीफ देने वाला है। जब तक हम हमारे स्वार्थ से बाहर नहीं आते, जब तक हम हमारी जरूरतें कम नहीं करते, हमारे ईमान में दम नहीं आएगा। ये सिंघम का डायलॉग है मेरे ख्याल से। तो ये जो सिंघम का डायलॉग है, इसको अपने जीवन में लाने के लिए थोड़ा आप इतिहास, भूगोल और यूनिवर्स समझिए। हम पहुंचे थे 3600 साल पीछे, अगर मैं उसमें 1500 जोड़ दूं एक मिनट दीजिए मुझे, तो मैं 5000 साल पीछे जाऊंगा, और तभी भी हमारे देश में सिविलाइज्ड लोग रहते थे, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम का निर्माण घरों के अगल बगल में ही था। मैं बात कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। अभी वहां पर आर्यंस रहते थे कि द्रविडियंस रहते थे कि कोई यूरोपियंस रहते थे, दैट इज इमटेरियल। हम इंसान हैं, हम इंसान की उपज है। कहाँ से निर्माण हुए, उससे ज्यादा जिनके कारण निर्माण हुए, वो दो चीजें हैं, पृथ्वी, मदर अर्थ, और अपने माँ बाप। दोनों की सेवा करनी है, उसके लिए उनको फोटो को हार डालने की जरूरत नहीं। जब उनकी जरूरत जो है वो उनके हिसाब से सही तरीके से लीगली पूरी करनी, यही एक चीज है जिसको देश सेवा, मानवता की सेवा, माँ बाप की सेवा बोला जाता है। तो 5000 साल पहले इस देश में सभ्यताएं थी। अभी इसी स्पीड से 13.8 अरब साल पीछे जाऊंगा तो लेक्चर चलेगा कम से कम 20-25 घंटे, तो हमको तो और आधे घंटे में खत्म करना है। सो वी विल पुश ऑफ व्हाट वी विल डू। 5000 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 50,000, फिर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 लाख साल पहले महाराष्ट्र के एक जगह पे आसमान से एक मिट्योर गिरा, और वो किसी खजूर पे अटका नहीं, वो जाके एक जगह पे गिरने से वहां एक ब्यूटीफुल लेक बना। तब से अब तक इंतजार कर रहा है कि सिंधुदुर्ग के बच्चे आएंगे जिन्होंने इतना बड़ा समुंदर देखा है, वो वहां आके देखेंगे कि सॉल्ट वाटर सिर्फ आपके समुंदर में नहीं है, वो तो उस लेक में भी है। अभी मैं पूछूंगा कौन सा लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आपसे कितना दूर है, तो 95% वालों को और 95% बच्चों को पता ही नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लोनार लेक। उसी के बगल में 100 किलोमीटर पे अजंता एलोरा केव्स है, देवगिरी का किला है। और ये सब अनुभव आपको लेने होंगे जब आप बड़े हो रहे हो, क्योंकि अनुभव से दूसरा कोई गुरु नहीं। तो ये अनुभव लेने के लिए आप जब जाओ तब वहां वो इंतजार करेंगे, क्योंकि ये जो है वो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स है, तो वो कहीं जाते नहीं अनलेस अंटिल सम बिग नेचुरल क्लैमिटी कम्स। तो 5.5 लाख साल पहले जो चीज हुई उसका ऑब्जर्वेशन, उसका स्टडी करने के लिए दुनिया भर के हजारों लाखों साइंटिस्ट इंडिया आते हैं। और इंडिया वाले बिजी है मॉल जाने में, इंडिया वाले बिजी है मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाने में। एंड दे आर सेइंग कि देश तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, क्योंकि हमारे साथ ऊपर वाला है। अभी ऊपर कौन रहता है आपके मुझे नहीं मालूम है, मेरे घर पे ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ खुला आसमान। तो एनीवेज, हम बात करें कि भाई 5-5.5 लाख साल पीछे गए थे, 13.8 अरब साल पीछे जाना है, तो एनीथिंग यू रिमेम्बर इन बिटवीन? then many of will again say no, then I have to say yes, क्योंकि आप सब ने मम्मी डैडी के मेहनत के पैसे खर्च करके डायनासोर वाला फिल्म देखा। ये डायनासोर भाई साहब पृथ्वी पे थे, मतलब कभी तो पैदा हुए, कभी तो मरे। तो भाई पैदा हुए मरे तो कुछ पीरियड होगा कि नहीं? ये पीरियड सुन के आपको हैरत होगी, क्योंकि आप इस तरीके से चीजों की तरफ देखते नहीं, और फिर ग्रेजुएट होने के बाद सोचते हो कि नौकरी मिलती नहीं। जब तक आप चीजें जो पढ़ी बाय हार्ट की उनको समझ के उनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस या इम्प्लीकेशन नहीं समझेंगे, यू विल नॉट बी ट्रू एजुकेटेड पर्सन। सही एजुकेटेड आदमी समझदार होता है, चीजों को प्रैक्टिकली यूज करना समझता है। डायनासोर तकरीबन 65 मिलियन ईयर्स पहले मरे, 6.5 करोड़ बोलते हैं जिसको।
और 20 करोड़ साल पहले पैदा हुए। 20 करोड़ का मतलब होता है 2000 लाख, 6.5 करोड़ का मतलब होता है 650 लाख साल। सब्ट्रैक्शन करोगे जवाब आएगा 1350 लाख साल। पृथ्वी के ऊपर 1350 लाख साल डायनासोर थे, और ये 1350 लाख साल में डायनासोर्स हम कब से हैं? 25 लाख साल। तो 1350 लाख साल बढ़ा या 25 लाख साल बढ़ा? 1350 लाख साल। तो 1350 लाख साल अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए डायनासोर्स ने कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितने गुरुद्वारा, कितने चर्च, कितने बुद्ध विहार, कितने जैन टेम्पल, कितने फलाना ढिंगरा का निर्माण किया? द आंसर यू नो वेल। तो कल से सोचिए कि आपको कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है, किताब की तरफ जाना है कि कहीं और जाना है। तो भाई हम पहुंच गए डायनासोर की दुनिया के परे। ये डायनासोर कहीं और आसमान में, यहाँ वहां, पाताल में, स्वर्ग में, नरक में नहीं पैदा हुए थे, पृथ्वी पे पैदा हुए थे, जो 4.5 अरब यानी 450 करोड़ साल पहले पैदा हुई सूरज के साथ। और ये सूरज और पृथ्वी का जो जमावड़ा, और ऐसे कई जमावड़े जो पैदा हुए इस ब्रह्मांड से 13.8 मतलब 1380 करोड़ साल। जीरो भी लिखने जाओगे ना तो नानी याद आ जाएगी, इतना लंबा पीरियड है। फिर भी ट्राई करके देखिए लेक्चर के बाद। So if this is the story of whole universe, then where the hell is misconception have crept in human life? इंसानी सभ्यता में गलतफहमियां कैसे आई? इसके लिए आपको जड़ तक जाना होगा कि हमने बात की ब्रह्मांड के निर्माण की, हमने सूरज के निर्माण की, और हमारे निर्माण की बात नहीं। तो यहाँ दिखाया 5वीं कक्षा का ज्योग्राफी का एक फोटो, जिसमें दिखाया है कि ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इस तरीके से हुआ। कोई गैस का गोला था, फिर जमने लगा, जमते जमते आग का निर्माण हुआ, फिर कचरा फेंका, फिर प्लैनेट्स बने, और एक प्लैनेट पे किसी की कृपा से कोई तो पैदा हो गया। समथिंग लाइक दिस यू लर्न एंड यू रिमेम्बर एंड देन यू कीप गोइंग फॉर सो मेनी रिलीजियस फेस्टिवल। स्टोरी ऐसी है बट अलग है। अगर मैं आपको पूछूं कि आपके घर पे किस तरीके से ऊर्जा का निर्माण होता है, तो गांव के व्यक्ति बोलेंगे सर लकड़ी जलती है, रॉकेल आता है रेशन से, या फिर कभी कभी एलपीजी सिलेंडर भी आता है मोदी जी की कृपा से। तो भाई आ गया, ये जलता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी सूरज के ऊपर कौन डेली जाके लकड़ी जला रहा है, कोयला जला रहा है? तो इसके ऊपर इस तरीके से सोचते सोचते पिछली सदी में जवाब मिला, और कोयला नहीं, कुछ गैस जल रहा है। तो बोला कौन सा? तो बोला गैस तो पता नहीं है। तो उधर फिर विजय दुर्ग वाले लोगों ने ढूंढ के निकाला कि भाई ये हाइड्रोजन के जैसा कुछ है। अभी वहां पे होगा ठीक है, बट विजय दुर्ग से या वहां से कितने लोगों ने जाके इसके ऊपर रिसर्च करके इंडस्ट्री बनाई और दुनिया की सोच को नया आयाम दिया? तो इसका जवाब शायद बहुत ही वीक होगा, जो एक्सपेक्टेशन से बिलो होगा। तो भाई कुछ चीज प्रेरणा स्रोत है, तो उस प्रेरणा का इस्तेमाल करके आपको भी कभी तो किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनना पड़ेगा। तो बात कर रहे थे सूरज के निर्माण की, जिसमें हाइड्रोजन है और वो जलता नहीं है, एक एटॉमिक फ्यूजन नाम की रिएक्शन से एनर्जी बनाता है पिछले 4.5 अरब साल से। मैं एटॉमिक फिशन पे काम करता हूँ और देश के लिए कुछ काम करता हूँ। तो एक सिंपल जिला परिषद के पढ़े हुए स्कूल में पढ़े हुए बच्चे को, जिसको 3 रुपए का वड़ा पाव खाने नहीं मिलता, उसको आज महीने का 3 लाख रुपया तनख्वाह मिलता है। आप समझ रहे हैं? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सोच, मेहनत और प्रॉपर गाइडेंस ही आपको जिंदगी में अच्छी जगह लेके जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ बोलूं कि ये सूरज निर्माण हुआ, निर्माण के समय जो ऊर्जा बन रही थी, उसने उसने कचरे का, उसके अंग का 1% से भी कम मात्रा फेंकी, उससे प्लेनेट बने, और इस तरीके से ये मिट्टी, हवा, वायु के गोले चल रहे हैं। इसका हमारे भविष्य पे, जीवन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो आधे लोग बोले ऐसे कैसे? और हमारे परम पूज्य बाबा जी, मौलाना जी, मुल्ला जी, फादर, सिस्टर, इन्होंने बोला कि ये फलाना अंगूठी पहनो, उससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, नहीं चमक जाएगी। अभी मुझे बताइए, अगर आप सच मायने में हिंदुस्तान के काबिल पूर्वजों को मानते हो, उनमें से एक है स्वामी विवेकानंद जी, यूथ आइकॉन, यूथ लीडर, एंड जिन्होंने दुनिया भर भारतीय सभ्यता के संस्कारों का, कल्चर का, संस्कृति का प्रचार किया, लोगों को कन्विंस किया कि भाई कैसे हम सही हैं। ऐसे व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट बोला हो कि ह्यूमन बीइंग्स आर द आर्किटेक्ट ऑफ देयर ओन डेस्टिनी, इंसान उसके भाग्य का खुद विधाता है, तो ये अंगूठी, तावीज और ये टोपी, टीका, दाढ़ी बढ़ाना, ये चक्कर कहाँ सीन में आ? तो भाई ये सही है कि नहीं, इसके लिए उदाहरण देना पड़ेगा। तो एक बच्चा आज से 80-90 साल पहले जब कहीं चेन्नई मतलब तमिलनाडु के कोस्टल नुमा जोन में रह रहा था, तो पुरखों की कुछ गलतियों के कारण घर पे जो थोड़े
फाइनेंशियली वीक हालात थे तो भाई साहब पेपर बेचते थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे, बीएससी इंजीनियरिंग कर लिया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो हाँ फाइटर प्लेन का पायलट बनते हैं। बट फाइटर प्लेन का पायलट बनने के लिए गए तो 8 वैकेंसी थी, इनका नंबर शायद 9वां आ गया। तो बंदूक उठा के टेररिस्ट नहीं बने, ना ही माँ बाप को कोसा, ना गाली दी, ना जाके सुसाइड किया। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जो उस समय कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन देश के लिए नहीं कर रही, बट वहां जाके गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह टांगे फैला के सोए भी नहीं। और आपके आसपास जो हफ्ता खाने वाले घूमते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, वैसे हफ्ता भी नहीं खाया। उन्होंने मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि देश को एक सक्षम डिफेंस सेक्टर में लेके गए। और खुद को लोगों ने उनको सराहा मिसाइल मैन के तौर पे। आगे जाके उनको चीफ साइंटिफिक एडवाइजर बनाया, फिर आगे जाके प्रेसिडेंट बने। और जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो हमको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता कि वो दिखने में कितने सुंदर थे, उनकी जात क्या थी, उनकी धर्म क्या थी, उनकी भाषा क्या थी। हम यही बोलते हैं कि शायद डॉक्टर एपीजे कलाम जैसा लायक व्यक्ति प्रेसिडेंट के तौर पे हिंदुस्तान को मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो व्यक्ति ही ऐसे थे जिनके जिंदगी की तरफ आप सीख सकते थे। ना उनको कभी दाढ़ी बनाने की जरूरत पड़ी, ना उनको कभी टोपी पहनने की, ना टीका लगाने की, ना कभी अपने रिलीजियस लाइफ को पब्लिक में लाने की। एपीजे कलाम बहुत ही रिलीजियस व्यक्ति थे, बट उनका रिलीजन उनको ये सिखाता था कि भाई सबकी इज्जत करो, सबके साथ चलो और सबकी मदद करो, सबसे ज्ञान लो और उस ज्ञान का मरते दम तक दुनिया को देते चलो। और आपने उनकी जिंदगी में ये देखा है, महसूस किया है कि आखिरी दम तक वो ज्ञान बांट रहे हैं। ये अपने देश में थोड़ा कम है, जहां स्वार्थी इतने लोग थे कि कुछ सैकड़ों साल पहले ही ज्ञान का भंडार जो है वो सीमित लोगों ने अपने मुट्ठी में पकड़ के रखा। और आज जब ज्ञान के द्वार खुले हो गए तो उनको, जिनको मिलता नहीं था, उनको ज्ञान नहीं चाहिए, उनको स्पेशल एमिनिटी चाहिए कि मुझे सीधा जाके वहां पे कोटा से चिपका दो। तो ये जो सोच है ये घटिया है, इससे हमको बाहर आना पड़ेगा। तो अभी हम बोल रहे थे कि अगर इस तरीके से इस सूरज का निर्माण हुआ, उसमें काफी बोला जा सकता है, टेक्निकल फंडामेंटल्स भी है, फिर कभी कवर करेंगे, विल गो फर्दर। सूरज का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी इस तरीके से कुछ बेजान सा मिट्टी नुमा गोला थी। सडनली उसके ऊपर इतने हैंडसम ब्यूटीफुल इंसान कहाँ से आए, ये आपके दिमाग में भी आता होगा। एक डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने पूरे दुनिया का चक्कर लगाते वक्त 5 साढ़े 5 साल में इस थेरी तक पहुंचे कि शायद कहीं ना कहीं इवोल्यूशन की प्रक्रिया ही इंसान और जीवों के निर्माण की स्टोरी सही तरीके से बता पाएगी। अभी उन्होंने इतने साल पहले जो थेरी दी, वो थेरी आज भी लायक लगती है, बट धर्म के बाशिंदे रखवाले जो है वो बोलते वो तो थेरी है। ऐसी तो कई थेरी होती, हर थेरी थोड़ी सही होती है। तो उनको ऐसे लगता है कि अगर डार्विन कहता है कि एप जैसे चीज प्राणी से इंसान बना, एप बंदर जैसे जीव से आया, तो भाई आजकल जंगलों के जो बंदर है उनके इंसान क्यों नहीं बने। मतलब राधानगरी में जाएंगे आप तो वहां पे वाइल्ड लाइफ में आपको बहुत सारे बंदर मिले, आपने 4 को उठा लिया, पिंजरे में रख दिया, घर लाके उनको शैम्पू किया, खाना खिलाया, ओके, कभी कभी मंचूरियन भी खिलाया। और फिर एक दिन देखा कि उनके बाल झड़ रहे हैं, और 1 महीने बाद देखा कि उनकी पूंछ झड़ गई, और 6 महीने बाद उन्होंने आपको बोला भैया भैया मुझे पैंट शर्ट दो, मुझे भी जाना है स्कूल या कॉलेज। ओके, इज इट पॉसिबल? नो। बट ये जो दलील है, क्या ये सही है? ऐसी घटिया दलील बड़े बड़े धर्मों के बड़े बड़े मुखिया देते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता है कि इवोल्यूशन की बात हो रही है, रिवोल्यूशन की नहीं। 4 लोग टोपी पहन के जमा कर दिए, या टीका लगा के जमा कर दिए, ताबीज बांधे हुए जमा कर दिए, और स्टोरी उलट पुलट हो गई। ये इतना आसान नहीं है। नेचुरल चेंजेस आर वेरी स्लो बट स्टेडी एंड सस्टेनेबल। तो ये नेचुरल चेंजेस जिस तरीके से आते हैं उसको इवोल्यूशन बोलता है। और अगर हम आज उसको मान ले तो भाई बंदर जिस प्रजाति से आया वो कोई रेंगने वाले सरीसृप जैसे जीव होंगे। सरीसृप कहाँ से आया, ऐसे करते करते पीछे जाएंगे तो एक सवाल जरूरी है कि जीव पृथ्वी के ऊपर कैसे आए। किसी ने ढूंढा ढांडी की तो पता चला कि शायद पानी से आया। तो पानी पृथ्वी के ऊपर कैसे आया? तो पानी को ढूंढा तो पता चला कि भाई बहुत सारी चीजें तो है, मिट्योर्स भी आते हैं तो उसपे बर्फ होता है, पिघल पे पानी बन सकता है। तो मिट्योर्स के ऊपर बर्फ कहाँ से आया? तो भाई बर्फ हो, पानी हो, H2O है, तो HO 2 है, तो ऐसे 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल। तो 118 एलिमेंट्स कहाँ से आए? तो भाई किसी ने ढूंढा, उनको चार्ट में डाला, उनका नाम मेंडेलिव था। पर जब ढूंढा ढांडी की तो पता चला कि भाई ये जो एलिमेंट्स है
ये तारों की फैक्ट्री में बनते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन चलाने वाले तारों की फैक्ट्री में जब उनकी मौत होती है तो ये फेंके जाते हैं, और ये एलिमेंट बाद में जीवन प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनते हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बना, पृथ्वी पे किसी माध्यम से आया, उसमें कहीं ना कहीं जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आगे जाके अमीनो एसिड्स बने, अमीनो एसिड से इस तरीके के सिंगल सेलुलर जीव बने, मल्टी सेलुलर में तब्दील होते गए, होते 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 इतने बड़े डायनासोर बने, और एक दिन धड़ाम से मर गए। क्यों? क्योंकि मंदिर नहीं जाते थे, मस्जिद नहीं जाते थे, चर्च नहीं जाते थे, है ना? नहीं, ये मरे क्योंकि फिर से एक मीटियोरेटिक इम्पैक्ट। आपको जान के हैरानी होगी, एक दिन में कम से कम बोला जाता है कि 1 लाख किलो या 1 लाख टन मलबा आसमान से पृथ्वी पे गिरता है, और उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। सिर्फ बड़ा होगा तो हमेशा बेहतर नहीं होता है, तकलीफ देता है। और ऐसे ही किसी मीटियोरेटिक इम्पैक्ट में लोनार लेक बना, और ऐसे ही किसी मीटियोरेटिक इम्पैक्ट में डायनासोर चल बसे। तो चलो मान लेते हैं कि ये बात सही हुई, डायनासोर भी चल बसे। तो भाई ये जो इंसान नाम का एक अजीबोगरीब नमूना है, ये कहाँ से? इसकी स्टोरी ये है कि जब जीवों में बदलाव हो रहे थे, तो ये आपके चित्र के सामने जो एक जीव है वो था, वो अपना जीवन बचाने के लिए, सेव करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा था। बहुत जल्द समझ में आ गया कि एक से भले दो, तो ग्रुप में रहने लगा। ग्रुप में रहते रहते समझ में आया कि हमेशा हाथ पांव का इस्तेमाल सही नहीं है, कुछ औजारों का, मतलब डंडी का, पत्थर का करना चाहिए इस्तेमाल। बाद में पता चला कि किसी प्राणी को मारने के लिए सिर्फ पत्थर नहीं तो शार्प पत्थर काम आता है, तो उसका इस्तेमाल हुआ। धीरे 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 जैसे मस्तिष्क पे जोर डालने लगा, दिमाग पे जोर डालने लगा, तो दिमाग का विकास होने लगा। इसलिए हम लोग 15 साल स्कूल जाते हैं, मस्तिष्क का विकास हो इसलिए हम स्कूल जाते हैं। 15 साल बाद डिग्री हाथ में लेने के बाद नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। मस्तिष्क का विकास हो गया तो बीआरसी के द्वार खुले हैं, डीआरडीओ के द्वार खुले हैं, गूगल के द्वार खुले हुए, इन्फोसिस के द्वार खुले हुए। मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ, सिर्फ माँ बाप के मेहनत के पैसे का वेस्टेज कर दिया, टीचर्स का कहा हुआ बात सुना नहीं, और बाद में वो मुंह उठा के लेके आ गए, भाई हमको नौकरी दो। तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये दुनिया जब तक माँ बाप की छत्र छाया में हो तब तक आपके माँ बाप की जागीर है। बाहर आने के बाद लोग किस चीज से कब आपके ऊपर प्रहार करेंगे इसका कोई लिमिट नहीं है। कायदा कानून होते हुए भी जिंदगी आप सोच रहे हो इतनी खुशनुमा नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस से भरी हुई है। और जो बहुत ही ज्यादा संभाल के जिसको माँ बाप नर्चर करते हैं, उनको चैलेंजेस लेने की आदत नहीं होती। तो चैलेंजेस लेना मतलब मुंबई में जाके 10,000 की नौकरी करना नहीं होता है। चैलेंजेस लेना मतलब जब भी जहां भी खड़े हो, उस समय में जो अनुभव आ रहा है वो मेरे लिए, खुद के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, माँ बाप के लिए कैसे यूजफुल होगा। जब ये जीव ये सब सोच नहीं पा रहा था, तो सोचने की कोशिश कर रहा था जो आपके स्क्रीन में है। तो धीरे धीरे उसने हथियार बनाए, जीवों को पालतू बनाया, उनका दूध इस्तेमाल करने लगा, खेती बाड़ी करने लगा, व्हील बनाया, आग को काबू में कर लिया, घर बनाए। करते 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 ये जीव ने 200 साल पहले मशीन बनाई, फिर सिर्फ 60-70 साल पहले कंप्यूटर बनाया, 30 साल पहले मोबाइल बनाया, और उस 30 साल से जो आज तरक्की हुई, तो भाई आपसे 250 से 300 किलोमीटर दूरी के ऊपर बैठ के आज तकरीबन अपने पास कितने लोग हैं? मेरे ख्याल से जस्ट लेट मी सी, 150 लोग आज अपना लेक्चर सुन रहे हैं। ना आपके जेब से कुछ गया, ना मेरे जेब से कुछ गया। आप में से 140 में से 14 लोग तो बोलेंगे कि सर जीवन में कुछ अच्छा सुना। तो ये जो हो रहा है ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। पैसा मिल नहीं रहा है बट बच तो सबका रहा है। तो ये सारी चीजें बनाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल हुआ उसको दिमाग कहते हैं, और उस दिमाग का विकास हो इसलिए आप स्कूल कॉलेज जाते हो। तो प्लीज प्लीज उसका विकास होने में टीचर्स की मदद करिए। वो जब भी आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं और टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, तो आप कौन से राजा महाराजा की औलाद हो इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आप गुरुकुल परंपरा या मदरसा की परंपरा या मिशन स्कूल की परंपरा को मानते हो, जानते हो, तो वहां पे एक ही संस्कार पहले होता था, जो है डिसिप्लिन। और इस डिसिप्लिन के चलते आज दुनिया का नंबर 1 चोटी का देश है जापान।
तो आपको जापान को जाके जीतना नहीं है, जापानियों को संस्कारों को समझ के उनकी तरह जिंदगी बसर करोगे तो हिंदुस्तान के कल्चर में हिंदुस्तान भी रहेगा और जापान की टेक्नोलॉजी का विकास और संस्कार भी हमें पाए जाएंगे। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो यहाँ पे मैं खत्म भी कर सकता हूं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे है जो अगर आप चाहे तो 15 मिनट लग सकते हैं, नहीं तो हम अगली बार कवर करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा ही चाहता हूं कि 1 घंटे से ज्यादा बोला न जाए। हमने 55 मिनट्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए है। ये जो पाई डायग्राम आपके सामने है उसमें आपको दिखाया गया एक सर्कल जिसमें 4.5 अरब साल से दिखाए गए, और यहाँ पे एक ह्यूमन नाम का टेक्स्ट लिखा है। देखिए मेरे माउस से मैं उधर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे जो छोटी सी ऑरेंज स्ट्रिप आपको दिख रही है, यहाँ पे ये ह्यूमन का अवधि है 25 से 50 लाख साल का। 1380 करोड़ साल में जो जो कुछ हुआ उसमें 50 लाख साल में जंगल में नंगे पुंगी अवस्था से घूमते हुए इंसान ने आज मोबाइल टेक्नोलॉजी तक पहुंचते हुए पूरे दुनिया को जो मुट्ठी में कर लिया है, इसका पूरा श्रेय इंसान की सोच, मेहनत और लगन को जाता है। इंसान ने ये करते करते और भी कुछ चीजें इजाद की जिससे उसको समझ में आया कि जिसने तुमको जन्म दिया, जो तुमको संभाले हुए है, उस नेचर को नहीं बचाओगे तो कभी भी किसी का भी कोई भी भला नहीं होगा। आज सिंधुदुर्ग, कणकवली, देवगढ़, चिपळूण, कोंकण का सारा बेल्ट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मेहनत कर रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि कोंकण की जो निसर्ग संपदा है उसका कोंकण के लोगों को फायदा हो, दुनिया को भी फायदा हो, बट वहां पे डैमेजेस न हो। और ये सोच साइंटिफिक सोच से मिल जाए तो कोंकण हमेशा की तरह पैराडाइज रहेगा, नंद हेवन रहेगा, स्वर्ग रहेगा। मैं बहुत बार आया हूँ, गोवा तक मेरे लेक्चर हुए हैं, और हर बार आया तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही पाया। इसलिए नहीं कि मैं पनवेल में रहता हूँ तो मैं कोंकण का हिस्सा हूँ इसलिए कोंकण के बारे में अच्छा बोलता हूँ। हम लोग जो अच्छे हैं वो अच्छी चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, गलत चीज है वो ठोक के बताएंगे कि ये गलत है। इसी से ही समाज में अच्छाई का प्रचलन होता है। ये मेरी सोच है। आगे बोलने के लिए वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स नाम का टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बट मैं चाहूंगा कि यहाँ रुके, आपके सवालों के जवाब ले, और फिर सैटरडे संडे अगला सेशन कंटिन्यू करेंगे। उसके अगले सैटरडे संडे करियर गाइडेंस के ऊपर बात करेंगे। दरमियान अगर कभी पैंडेमिक खत्म हो गया तो आपके कॉलेज में आने की मैं कोशिश करूंगा। सो नाउ आई हैंड ओवर बैटन टू मैडम और सम सर जो इसको एंकर कर रहे हैं। ओके प्लीज। Thank you, sir. Thank you for this wonderful session. Today, I just want to mention, you mentioned about a pie chart here, pie diagram. So today is Pi Day, and I'm sure कि सबको मालूम रहेगा today is 3rd of March, sorry 14th of March. So for 3.14 is considered as a value of pi. So it is Pi Day, and for us it is, for Engineering Institute it is big day. And on behalf of our entire institute, I would like to thank our honorable chief guest, Santosh Thakre sir. I would also like to thank Shubhangi madam, Mane madam, for having such a nice lecture. And I would also like to thank supporting staff, all the students of our college for patiently listening to this seminar. And I would like to thank our principal sir for making this happen. So thank you again, sir. Thank you very much for joining this. And we would like to have you for some another session on, as you said, on your next topics on career guidance. And we would be very happy if you join us after this pandemic for 1 or 2 days, and we'll keep your sessions here. Thank you, sir. Thank you very much. आई जस्ट वांटेड टू कन्वे, आपके कुछ सवाल होंगे तो भी आप पूछ सकते हैं, समय नहीं है तो नहीं पूछेंगे तो भी चलेगा। हम इस ग्रुप जो maybe some students are having some questions. They can post in chat box or they can turn on their mic and ask questions. होल्ड ऑन, इंस्ट्रक्शन मैं देता हूँ। चैट बॉक्स में सवाल डाले जा सकते हैं, प्लीज डालिए। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, चैट बॉक्स में ही सवाल डालना है। टीचर को भी चैट बॉक्स में ही सवाल डालना है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि ये जो ग्रुप बनाया हमने व्हाट्सएप पे, ये आपकी कॉलेज की तरफ से प्लीज कंटिन्यू रखिए।
इस ग्रुप को हम टीचर्स के लिए ओपन कर देंगे। तो मैंने माने मैडम को एडमिन बना दिया, तो बाकी जिसको जो लायक है उनको एडमिन बनाने का काम मैडम करेंगी। इस ग्रुप को हम कंटिन्यू रखेंगे, कोई भी इररिलेवेंट पोस्टिंग नहीं रखेंगे। कभी ना कभी बच्चों का इसके कारण फायदा होगा, बट इररिलेवेंट पोस्टिंग को अवॉइड करिए। यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द करियर, यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ, यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये करो वो करो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून शुड बी अवॉइडेड। तो ये मैं एक बताना चाह रहा था कि जो बच्चे ग्रुप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनको जब तक मैं आपके यहाँ विजिट नहीं करता, कंटिन्यू द ग्रुप। अभी आप सवाल चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए थे। अभी मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, गिव मी सेकेंड एंड जस्ट गिव मी सेकेंड, आई विल गो टू द चैट बॉक्स ताकि मुझे आपके सवाल वगैरह कुछ है तो देख सके। Okay, you have any questions? Please, now you can put to the chat box. Chat box is open in front of you. कोई सवाल पूछना नहीं चाह रहा है, लग रहा है कोई चैट बॉक्स में क्वेश्चंस नहीं आ रहे। So it seems it is over. Okay. So if it is over, then sir आप बोल दीजिए तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ। हेलो, बोलिए मैडम। yes sir, we will stop. We can stop. Thank you very much. Okay. Bye bye. Thank you very much. Thank you, madam. Bye bye. Good day. Please leave the class immediately. Okay. Thank you.